Bismillahirrahmanirrahim. Hello my dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learning English with Saliha. So finally students, we have reached the last unit of your book according to the new syllabus 2025. The whole book notes students are available on my channel with complete and outstanding understanding of all difficult concepts that has been given in your book, in your English books. So there are 11 playlists of each unit on my channel consist of translation, book work and question answers. So just type your required unit and learn a lot from it. Alright students, so let's take the last unit, understanding. Here you can see unit number 11, the dear departed. Dear departed mean वो प्यारा जो गुजर गया. This is a drama and the theme of the drama is like that the theme of the dear departed revolves around materialism and hypocrisy यानी मुनाफकत और मादियत पसंदी परस्ती के दरमियान में ये ड्रामा है कि किस तरह लोगों के दिल में मुनाफकत होती है और रिश्तों का एहतराम वो भूल चुके हैं in family and relationship. The play highlights how greed and self-interest often overshadow जेन्युइन रिलेशनशिप यानी जो लालच है जो एक दूसरे का हक मारने का उनकी कोशिश है जो अक्सर जब विरासत की बात आती है तो इस तरह के मामले हर फैमिली में रूनुमा होते हैं कि लोग लालच और हसद की वजह से दूसरे को नुकसान भी पहुंचा देते हैं. So this drama is about all materialism and hypocrisy. So we have to solve the question answers in this lesson. So question number 1 of unit number 11 is what do the action and words of Mrs. Slater and Mrs. Jordan reveal about their true motivation and how these motivations influence their behavior throughout the play. यानी किस तरह से जो मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन का एटीट्यूड था उनका रवैया था वो किस तरह से ये इन्फ्लुएंस शो कर रहा था किस तरह का एटीट्यूड और बिहेवियर थ्रू आउट द प्ले रहा है. So you will write the heading first, true motivations, and the answer is Mrs. Slater and Mrs. Jordan want money. वो पैसा चाहते थे and Mr. Merriweather thinks their greed makes them act mean and selfish throughout the play. यानी वो मिस्टर मैरीवेदर का पैसा चाहते थे और इस तरह का जो लालच था, ग्रीड इज लालच, उनको उनके एक्ट को और ज़्यादा मीन घटिया शो करता था और सेल्फिश खुदगर्ज यानी पूरे प्ले में मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन ने ग्रीड और सेल्फिशनेस को शो किया है. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट over Mr. Merriweather's possession drive the plot of the play? What does this conflict reveal about the character's value and priorities? यानी किस तरह का तजाद मिस्टर मैरीवेदर्स की जो पोजेशन होता है मलकियत को शो कर रहा था. व्हाट डज दिस कॉन्फ्लिक्ट रिवील अबाउट द कैरेक्टर्स वैल्यू और किस तरह से ये तजाद जो था इन किरदारों की इकदार और तरजीहात को शो कर रहा है. सो राइट द हेडिंग फर्स्ट. Heading is plot of the play. So the conflict over Mrs. Weather's belongings make everyone upset and angry. यानी जो मिसेस वेदर की बिलोंगिंग्स थी उनकी जायदाद थी उनकी प्रॉपर्टी थी उसको हर एक ने अपसेट और परेशान किया हुआ था. They keep on quarreling, which drives the plot of the play. It shows that they care more about the things than each other. यानी हर फैमिली मेंबर ये शो कर रहा था यानी उसको उनकी पर्सनैलिटी की मिस्टर मैरीवेदर से कोई लिंक नहीं था बल्कि उनकी सिर्फ जायदाद से उनकी बिलोंगिंग से उनकी मलकियत से था कि हमको इसमें कितना हिस्सा मिलेगा. यानी सब लालची और मुनाफकत से भरे हुए थे. So question number 3 is in what ways does Stanley Houghton satire to criticize family approach in conveying his message? यानी किस तरह से स्टैनली हाउटन जो उसका राइटर है सटायर कहते हैं तंज को, क्रिटिसाइज मीन तनकीद की, फैमिली डायनेमिक्स एंड सोशल वैल्यूज के उस फैमिली की जो सोशल इकदार हैं जो समाजी उनकी समझबूझ है और उनकी हरकत और उनका बिहेवियर किस तरह से हाउ इफेक्टिव इज हिज अप्रोच इन कन्वेइंग हिज मैसेज यानी उन किरदारों के जरिए वो किस तरह से अपना मैसेज कन्वे कर रहा है. सो फर्स्ट द हेडिंग इज सटायर इन द प्ले
And Stanley Houghton uses satire to expose hypocrisy, selfishness within the family, and absurd justification of the behavior of the characters, which develops a hatred of the characters that makes his approach very effective in conveying the message. It means जो स्टैनली हाउटन है, जो राइटर है, उसने इस तरह का सटायर कहते हैं तंज को, तंजो मजाक को किसके जरिए, हिपोक्रेसी, मुनाफकत, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी विद इन द फैमिली के किस तरह से फैमिली मेंबर्स ये सारी चीज़ों को शो कर रहे हैं, ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स विच डेवलप्स अ हेट्रेड, जिसके दरमियान सब किरदारों के दरमियान में हेट्रेड, नफरत पैदा हो गई है। और इस तरह से वो इन करेक्टर्स के थ्रू अपनी बात कहना चाह रहा है कि हमारी फैमिलीज़ में जब भी कोई इस तरह की बात होती है, यानी पोजेशंस का और बिलोंगिंग्स का मामला आता है, तो सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। Okay, question number 4 of your book is, how does the play challenge the traditional idea of family unity and affection, and what does the Dear Departed suggest about the nature of the family ties when material wealth is involved? यानी किस तरह से ये प्ले चैलेंज करता है हमारी रवायात को, ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ अ फैमिली, यानी एक फैमिली में यूनिटी के लिए, इत्तेहाद के लिए, और हमारे रवायात की को किस तरह से ये चैलेंज कर रहा है ये प्ले। एंड व्हाट डज द डियर डिपार्टेड सजेस्ट, डियर डिपार्टेड किस तरह से ये सजेशन दे रहा है अबाउट द नेचर ऑफ द फैमिली, कि हर फैमिली की नेचर कैसी होती है इस मौके पर, व्हेन मटेरियल वेल्थ इज इन्वॉल्व, जबकि मादियत परस्ती इन्वॉल्व हो, दुनियावी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व हों, तो हर फैमिली में किस तरह का बिहेव किया जाता है। सो राइट द हेडिंग फैमिली यूनिटी, एंड द आंसर इज दैट the play shows that family unity and affection has to face challenges, can be lost when material wealth is involved. यानी the family shows that family unity and affection has to face challenges. उस वक्त उस फैमिली का जो इत्तेहाद है और उनकी मोहब्बत है, उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि व्हेन मनी इज़ इन्वॉल्व, यानी हर कोई चाहता है कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिले, हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी मिले, हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए, सब इस लालच में होते हैं। और इट सजेस्ट दैट लव एंड एम्पैथी कैन बी लॉस्ट, और इस मौके पर मोहब्बत और एहसास सब खत्म हो जाता है व्हेन मटेरियल वेल्थ इज इन्वॉल्व, जब दुनियावी चीज़ें, मादियत परस्ती शामिल हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, what role does the clock on the mantelpiece play in the story, and how might it symbolize the character's attitude towards time, routine, or even inheritance? Inheritance कहते हैं वरासत को, यानी जो क्लॉक है उस ड्रामा में, क्लॉक है, मेंटल पीस मीन आतिशदान, जहां पर वो पहले पुराने ज़माने में आग लगाई होती थी विंटर्स में, तो उस आतिशदान के ठीक ऊपर जो क्लॉक था स्टोरी में, वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज़ की अलामत है। द करेक्टर्स एटीट्यूड, किरदारों के रवैयों के बारे में, टाइम, रूटीन और इवन इनहेरिटेंस और विरासत के बारे में वो क्लॉक किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। सो द क्लॉक सिंबलाइज, यू विल राइट द हेडिंग लाइक दिस, एंड द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस रिमाइंड्स एवरीवन अबाउट टाइम, यानी कि वक्त की कदर करो, एंड हाउ क्विकली थिंग्स चेंज, कि किस तरह से वक्त बदलता है। जब एक बंदा मर जाता है तो सब किस तरह से कहते हैं कि जो इसको उठाओ और छोड़ाओ, और इसका जो जो पैसा है उस पर कब्जा कौन कौन किस तरह से करेगा। इट शोज दैट द करेक्टर्स केयर मोर अबाउट देयर पोजेशंस देन द टाइम दे स्पेंड टुगेदर। वो भूल जाते हैं कि हमने इसके साथ किस तरह का वक्त गुजारा, कितना अच्छा वक्त गुजारा, बल्कि सिर्फ इस चीज़ पर फोकस होता है कि इसकी पोजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। So this is the clock symbolized. Okay, question number 6 is, how does Victoria's character differ from the adults around her? यानी विक्टोरिया का कैरेक्टर किस तरह से डिफर मीन मुख्तलिफ है दूसरे बड़े किरदारों से। And what does her perspective tell us about the younger generation's view of family behavior? और किस तरह से ये उस फैमिली के जो यंगर, जो छोटे यंग लोग हैं, उन पर किस तरह से वो असरअंदाज हो रहा है। So you will write the heading first, Victoria's character, and Victoria is more honest, thoughtful than the adults, यानी वो ज़्यादा ईमानदार है और thoughtful है, who acts selfishly. Her view shows that younger people can see through the adults' silly and hypocritical behavior, कि किस तरह से वो बड़े लोगों की, जो उस फैमिली के सीनियर मेंबर्स थे, उनकी मुनाफकत और उनके बेवकूफ़ाना रवैये को देख रही थी और उस पर कोड़ रही थी। So question number 7 is,
How do the characters display hypocrisy throughout the play? What are some examples where their words contradict their actions? यानी किस तरह से जो किरदार है वो मुनाफकत पूरे प्ले में शो कर रहे हैं, और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दें वेयर देयर वर्ड्स कंट्राडिक्ट देयर एक्शंस के कुछ जगहों पे इस तरह के उनके अल्फाज उनकी बातों से उनके अमल से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी मैच नहीं करते। वो बोल कुछ हो रहे थे लेकिन उनके एक्शंस कुछ और बोल रहे थे। ये किन से हमें पता चलेगा? सो द आंसर इज hypocrisy of characters. The characters often say nice things, यानी sometimes वो बड़े अच्छे अल्फाज बोलते हैं but act in mean ways, लेकिन उनके actions जो वो काम कर रहे होते हैं, यानी बोलने में तो बहुत मीठे थे लेकिन उनके जो actions थे वो बहुत mean थे, घटिया थे। Like pretending to care which really wanting money, यानी वो सिर्फ इसलिए उसकी केयर कर रहे थे कि उनको पैसा चाहिए था। They pretend grief while in actual they do not care, वो इस तरह से शो कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा गमज़दा है, ग्रीफ इज गमज़दा, while in actual they do not care, लेकिन हकीकत में वो इसकी केयर नहीं करते थे। They pretend to give Mr. Abel a great burial while in actual they have no respect, यानी वो ये शो कर रहे थे कि वो इसके लिए बहुत इज्जत के काबिल है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उसकी दौलत के पीछे थे। So question number 8 is, how does the setting of the play, a single confused living room, affect the way the characters interact with each other? What might this confined space be, and what might this confined space suggest about the nature of the relationship? यानी किस तरह से इस प्ले की जो सारी सेटिंग है वो एक महदूद एक कमरे तक है, और करेक्टर्स इसमें किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं और पूरे प्ले को किस तरह से इसकी नेचर और इसके रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। सो द हेडिंग इज सेटिंग ऑफ द प्ले, एंड द आंसर इज द स्मॉल लिविंग रूम मेक्स एवरीवन फील cramped and frustrated with each other. Moreover, the limited setting leaves characters with no physical escape from each other, forcing them to confront their issues directly. It shows that their relationships are tense and unhappy. It means cramped mean तंग, फ्रस्ट्रेटेड मीन एक दूसरे से उकताए हुए थे, यानी एक छोटे से कमरे में हर बंदा एक दूसरे को देखकर उकताया हुआ था, परेशान था, और जो लिमिटेड सेटिंग थी उन कैरेक्टर्स की, विद नो फिजिकल एस्केप फ्रॉम इट, एक दूसरे से छुपी हुई नहीं थी, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। इट शोज दैट देयर रिलेशनशिप्स आर टेंस एंड हैप्पी, यानी उनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ बिल्कुल टर्न्स, परेशान कुन और अनहैप्पी, नाखुश था। So question number 9 is, how does Stanley Houghton organize the sequence of events in The Dear Departed to build tensions and reveal the character's true motives? यानी स्टैनली हॉटन जो इसका राइटर है उसने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया इस सारे इवेंट को, इस सारे ड्रामा को इन द डियर डिपार्टेड, यानी इस प्ले में, टू बिल्ड टेंशंस एंड रिवील द कैरेक्टर्स ट्रू मोटिव, यानी किस तरह से उसने इन किरदारों के जरिए टेंशन को भी शो किया और उनका जो मकसद था, उन किरदारों का जो लालच था, उनकी हिपोक्रेसी थी, उसको किस तरह से डिफाइन किया। सो यू विल राइट द हेडिंग फॉर स्टूडेंट्स, sequence of events, and Houghton organizes events to create drama, making the characters' revelation their true wants, from the gradual revelation of death to conflicts, unexpected arrival of Abel, tension keep on mounting, then characters' hypocrisy and the confrontation with each other, and finally the resolution. All events reveal their true motives. It means कि हाउटन ने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया सारे इवेंट्स को, सारे मौके को, अपने ड्रामा को बेटर क्रिएट करने के लिए किस तरह से उसने किरदारों को एक्सपोज किया, उनकी हेट्रेड को, उनके हिपोक्रेसी को, उनकी सेल्फिशनेस को, एंड फ्रॉम द ग्रेजुअल रेवलेशन ऑफ डेथ टू कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह से अचानक उन्होंने ये शो किया कि वो मर गया है लेकिन अचानक से वो फिर से सामने आ जाए, अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ एबल, और उन सब के दरमियान में जो टेंशन क्रिएट हुई ऑन माउंटिंग, देन कैरेक्टर्स हिपोक्रेसी एंड कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, किस तरह से एक दूसरे पर उनकी मुनाफकत शो हुई, एंड फाइनली द रेजोल्यूशन, ऑल इवेंट्स रिवील देयर ट्रू मोटिव्स, इस तरह से उन सब की जो नीयत थी वो शो हो गई। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, हाउ डू the themes of The Dear Departed remain relevant in modern society?
यानी किस तरह से जदीद दौर में जो डियर डिपार्टेड की थीम है वो अभी भी अप्लाई हो रही है. कैन यू थिंक of contemporary examples where materialism impacts family relationship in a similar way? क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसके अगेंस्ट कि किस तरह से मटीरियलिज्म हमारे आजकल के भी फैमिली रिलेशनशिप में शो हो रही है. सो द रेलिवेंसी ऑफ थीम, यानी इस थीम का इजहार कैसे होगा. द थीम्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे because families still argue about money and things just like in the play. Sometimes people forget to care for their neighbors when they have no means to have enough food for themselves. यानी अब इसकी एग्जांपल कैसे दी जा सकती है कि द थीम आर स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे बट बिकॉज फैमिली स्टिल आर्ग्यू. अभी भी जब किसी के बड़े की सीनियर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी के इशू आ जाते हैं तो पूरी फैमिली आर्ग्यू करती है, बहस करती है अबाउट मनी, पैसे के बारे में एंड थिंग्स, चीज़ों के बारे में. जस्ट लाइक इन द प्ले, जिस तरह से प्ले में शो किया जा रहा है. समटाइम्स पीपल फॉरगेट टू केयर, यानी इवन वो अपने नेबर्स की, अपनी किसी की चीज़ की परवाह नहीं करते. सब अपने लालच में इस कदर मसरूफ होते हैं कि हम इस चीज़ पर, इस पोजेशन पर, इस बिलोंगिंग्स पर कब्जा कर लें. Alright students, so we have completed the all question answers of this play, The Dear Departed, वो प्यारा जो गुजर गया, and we have discussed all the important things, concepts, symbolism, satire, and the contradictions and the tension that has been given in the play. I hope आप सबको समझ आया होगा. आप सब ये question answers note down कर लें. So all the videos of your English book are available on my channel in the playlist, and each playlist consists of the translation, book work, and the question answers. So if you like this video, please like, share, and comment, and don't forget to subscribe my channel Learn English with Saliha. Thanks for watching. Take care and Allah Hafiz.